Hello everyone, Radhe Radhe, Atma Namaste everyone. राधे राधे। Radhe Radhe. A very राधे welcome. Radhe Radhe Payal. Very Radhe Radhe Ritu. Ritu, since you are muted, I can't hear your voice. राधे राधे। Radhe Radhe. You are Rashmi. I'm Rashmi S. Saraf, Okay. astronumerologist. And today we are embarking on a beautiful journey of understanding Loshu grid, a modality of numerology. Yes, I also have little interest in numerology and know some things about it. so definitely you would be able to add value with this session. So I would just mute everyone and we can interact in between or at the end of the session or when questions are being asked. Yeah. Okay. I just get my copy. Yes. A very warm welcome on today's session on professional Loshu grid. So before we start with the session, we'll do a small opening invocation. So let us fold our hands in prayer pose. O Divine Father, Divine Mother, all the holy gurus, all the devas, all the Kul Devis and Kul Devtas, all the Ishta Devis and Ishta Devtas, all the holy angels, angels of technology, numerology, all the occult sciences, angels of learning, angels of better concept and understanding, our guardian angels, angels present in this room and in the room of respective participants, and also the participants who are watching this recording later on. We all hereby invoke for your priceless blessings, help, healing, and protection, and for the smooth running of the session. We all collectively thank you in full faith. Thank you, thank you, thank you. So, welcome back once again. So, as Ritu said, she has some knowledge of numerology. That's nice. And Kavita and Payal are already my students, my advanced Vedic numerology students. Before we embark on this beautiful session, I would just want to introduce myself. I am Rashmi S. Saraf, an astronumerologist, consultant, and trainer. In short, I can say I'm a numerology coach, and I help professionals become better professionals by creating a second source of second source of income via this beautiful science of occult. And yes, of course, we also help individuals to navigate their life by giving them the GPS of their life via this beautiful science. So we have numbers all around us. Life is full of numbers from the day we are born till the date we take our last breath under the sun. Life is indeed a journey full of numbers from your date of birth to your class section roll number to your anything. It could be your Aadhaar card, your ID number. But there are few numbers indeed which are very important for us in our life and which actually makes a difference in our life, a significant difference. So I'll just allow myself a single minute to share the screen so that things can be shared in a better way. Yes. So as everyone can see my screen, now it's unveiling numerology. What is numerology? Numerology, as I always say, it is a science and the language of numbers. हर नंबर कुछ कहती है, हर नंबर कुछ कहता है और हर नंबर की अपनी एक भाषा होती है. So we now will understand what does our date of birth says about us, because date of birth being the cosmic DNA, that which we get from the universe. We can't choose the date to get born on the earth. हम अपने आप से क्या अपनी डेट चूज कर सकते हैं? भाई, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू वर बोर्न ऑन 10th ऑफ ए मंथ, नॉट ऑन द 9th और ऑन द 11th? उसी एक पर्टिकुलर डेट को ही आप क्यों बॉर्न हुए? फ्यू इंडिविजुअल्स वुड से कि हाँ, हम लोग अपनी डेट चूज कर सकते हैं. वी हैव द ऑप्शन ऑफ इलेक्टिव सर्जरी. डॉक्टर के साथ प्लान करके कलेक्टिवली पंडित जी से पूछ के हम एक तो फेवरेबल डेट निकालते हैं एंड उसी दिन पे हम माँ की डिलीवरी करवाते हैं. यस, ट्रू, वेरी ट्रू. लेकिन उसमें भी तो कितने सारे चेंजेस हो जाते हैं ना. कभी हुआ कि प्री मैच्योर हो गया, कभी हुआ कि बाद में हुआ, ओटी खाली नहीं है, डॉक्टर को कुछ हो गया, समथिंग और द अदर. Because the dates choose us. They are being chosen by the universe.
वी एक्चुअली कांट चूज अ डेट। ये हमारा एक भ्रम है कि हम डेट चूज कर सकते हैं। तो यस, इट्स मी। As I said, by profession, I am an astronumerologist, consultant, and trainer. But by education, I am a finance professional. I am a CMA, cost management accountant with a certificate of practice. But by heart, although obviously I'm a humanitarian, I have the just to help others. So definitely you can connect with me to unlock the mysteries of your life. Now the question comes, there are so many modalities of numerology which have been prevailing in the market of occult. आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेगा एस्ट्रोलॉजी सबसे बेस्ट है। आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे तो वो टैरो कार्ड के बारे में तमाम चीजें आपको बताएगा। एंड वो आपको समझाएगा कि क्यों आपको टैरो कार्ड रीडिंग से ही बेनिफिट्स होने वाले हैं। यस, उसी तरह से यू गो टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट हु आर प्रैक्टिसिंग वेरियस मोडालिटीज ऑफ न्यूमरोलॉजी। ऐसे फॉर एग्जांपल आई प्रैक्टिस वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड लोशो ग्रिड। Someone else may be practicing Chaldean or Pythagorean or something like that. So now we get so confused. Now we are unable to understand कि हमें actually follow किसको करना है, कौन सा हमें best results देगा। हमें ये बहुत ज्यादा भारी confusion हो जाता है कि हमें ultimately follow किसको करना है। उस टाइम पे हमारे पास में, जैसे हम एक छोटी सी स्टोरी लेके आए हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए। फ्यू ब्लाइंड मैन went to see an elephant. They wanted to see an elephant, but since they were blind, they were visually challenged. तो उनके जो केयर टेकर थे उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम सबको हाथी दिखा के लाता हूँ। हाथी के पास उन लोग गए, उन्होंने हाथी के डिफरेंट पार्ट्स वो अलग अलग लोगों को पकड़ा दी। नाउ ब्लाइंड मैन हाउ दे सी थिंग्स वाया द ब्लिस ऑफ टच। उनके टच वाली स्किल्स बहुत एनहांस्ड होती है, बिकॉज ठाकुर जी जब किसी को कोई तकलीफ देते हैं ना तो साथ में कोई ब्लिस भी देते हैं उसको। सो उनका टच बहुत एनहांस्ड होता है। तो उन्होंने सबने हाथी के अलग अलग पार्ट्स को पकड़ लिया, किसी ने दांत पकड़े, किसी ने पाँव, किसी ने पेट, पूंछ, एक्सेट्रा। एंड जब उनके केयर टेकर ने पूछा कि यस हाथी को देख पा रहे हो ना, कैसा है हाथी? तो जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा हाथी एक लंबी सी चीज है जो हिल रही है मेरे हाथ में, और उसके आगे में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल जैसे कुछ रेशे भी मुझे फील हो रहे हैं। तो दूसरा बोला बक तेरे को कुछ नहीं पता है। जिसने पाँव पकड़ा था बोला हाथी कोई बहुत चौड़ा सा, भारी सा, मोटा सा चीज है। मैं इसको जितना भी हिलाने का कोशिश कर रहा हूँ वो तो हिलता ही नहीं, और तू कहता है वो हिल रहा है। आ गया ना फर्क यहाँ पे, एक कह रहा है वो हिल रहा है, दूसरा कहता है तुम खंबे की तरह मजबूत है, टिका हुआ है। तीसरा बोलता है दोनों जन गधे हो तुम लोग। जिसने पेट पकड़ के रखा था बोला बिल्कुल फ्लैट है, चिकना है एकदम, और हल्की हल्की धड़कन जैसी फीलिंग आ रही है वहां से। जिसने दांत पकड़ा बोला बहुत नुकीला है, स्टिफ है, ना हिलता है, ना रेशे है, ना मोटा है, ना फ्लैट है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से एवरीवन हैड अ डिफरेंट ओवरव्यू अबाउट द सेम एलिफेंट। ऐसे भी नहीं उन लोग को चारों को चार तरह के हाथी पकड़ाए गए, ऐसा भी नहीं था। सेम एलिफेंट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को उन लोगों ने पकड़े हुए था। तो इससे हम क्या समझते हैं, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द सेम एलिमेंट। हाथी को अगर हम एज एन एलिमेंट ले, एज ए प्रोडक्ट ले, सो डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो न्यूमरोलॉजी के तो इतने ज्यादा मोडालिटीज है कि आप देखने जाओ तो 100 से भी ज्यादा, मगर यहाँ मैंने कुछ जो जो मेजर मोडालिटीज मार्केट में प्रैक्टिस होती है, सबसे पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी, सेकंड लोशो ग्रेड, शाल्जन न्यूमरोलॉजी फॉर नेम करेक्शंस, पाइथागोरियन अगेन फॉर प्रेडिक्शंस, कबाला, आब्रा कडाब्रा, इस तरह की जो मेजर मोडालिटीज प्रैक्टिस होती है मैंने उनके ही नाम लिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी मोडालिटी से भी प्रैक्टिस करो, अब सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस गलत है या फिर वो गलत प्रेडिक्शंस दे रही है। Our understanding and our experience has been different with that science. So I think I'm able to justify myself regarding the science. So why should we invest in embryology? हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं ना। बच्चे को स्कूल भेजना है तो हम 4 स्कूल्स वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उस स्कूल में उनको एनरोल करवाते हैं। अगर हमको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो हम बहुत सारी तमाम कंपनीज का रिसर्च करेंगे, फिर एक म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे।
हमारे ये मैंने वर्टिकल लिया फाइनेंस का। एनीथिंग इन लाइफ, इवन इफ यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, आपको एक रेगुलर एंड्रॉयड टीवी भी लेना होता है, एक फोन भी लेना होता है, तो हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं। सो इतना हमें समझ में आता है कि अगर हमारे पास किसी चीज की नॉलेज है तो हम उसका करेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, और कलेक्टिवली उन सब चीजों का। यस। सो as I have quoted over here, an investment in knowledge gives you the best and assured results. कोविड ने हमें सिखा दिया स्किल बेस्ड नॉलेज ही आगे फ्यूचर में काम आएगी। हमारा आने वाला फ्यूचर टिका हुआ है स्किल बेस्ड नॉलेज पे, स्किल बेस्ड प्रोफेशंस पे। व्हाई? बिकॉज एआई इज गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बचेगा क्या? जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्टीज की जरूरत है बचेगी वो सारी चीजें। तो यस, उसमें हमारा ऑकल्ट भी आता है। कितना भी गूगल आपको प्रेडिक्शंस दे दे, एस्ट्रोसेट से आप अपनी कुंडली डाल के उसमें कितना भी प्रेडिक्शंस निकाल ले, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है? नहीं होता है ना। यू स्टिल वांट टू गो टू अ प्रैक्टिशनर। वहां भी आप कहते हो हम वर्चुअल नहीं लेंगे, हम आपके सामने बैठ के लेंगे, तभी हम अपने मन की बात आपको प्रॉपरली बता पाएंगे। ऐसा भी होता है हमारे साथ में। पीपल स्वॉर्म इन माई चेम्बर। मैं कहती हूँ ऑनलाइन ले लीजिए, आपका भी टाइम सेव हो रहा है और मैं अपने घर के कन्वीनियंस से मैं दे रही हूँ। नहीं, चेम्बर में ही आना है, ऑफलाइन ही लेना। वाई? ये है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये एक ऐसा साइंस है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बी एश्योर्ड you are not wasting on a single penny, you are not wasting on a single minute of your energy, and yes, of course, you are not wasting on anything else, time, energy and money, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं आज के दिन में हमारे लिए। तो इसलिए हमें इस साइंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए वी शुड थिंक ऑफ लर्निंग दिस साइंस। तीन चीजों के लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं। आप इस साइंस को पढ़ रहे हो क्योंकि आप इसमें अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो। आप इस साइंस को पढ़ रहे हो क्योंकि आप अपनी लाइफ को नेविगेशन चाहते हो। आप इस साइंस को पढ़ रहे हो क्योंकि आप औरों को पढ़ाना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो। यस। सो इट इज इंडीड अ न्यू स्किल डेवलपमेंट। आप इससे पैसे कमा सकते हो और आपकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। रादर आपकी जितनी ज्यादा एजिंग होते जाएगी उतना ज्यादा आपके ऊपर एक्सपीरियंस से आप लोडेड होते जाओगे और आप ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस दोगे, और ज्यादा लोग आपके एक्सपीरियंस से और आपके नॉलेज से बेनिफिट होना चाहेंगे। Not only we understand our own strengths and weaknesses, we also understand others. So we are able to deal with people better. So many HR agencies hire numerologists and occultists. क्यों? हायरिंग में किस इंसान को किस प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहिए ये समझना तो जरूरी है। So yes, numerology helps them. And yes, of course, Neuroscience with Rashmi, key to your success, has convenient online classes. आपको 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके या आधा घंटा भी ट्रैवल करके आने की जरूरत नहीं मेरे पास में। We take the 80% of the class online and 20% only is offline. That too with a mutual convenience of all my students. And of course, yes, numerology is a journey, it's not a destination. So you make small investments in numerology today and you will indeed get big results tomorrow. So why not start your journey from today? तो जैसे I offer so many modalities, and how do we benefit? Various ways: career, health, wealth, relationship, the four main pillars of a person's life. मैजिक ऑफ नंबर्स हम डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ नेम, स्पेलिंग नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस व्हीकल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड तमाम जगह पे हम देख पाते हैं। The very important aspect of numerology indeed is medical numerology. The medical aspects of numerology are so strong, they can predict आपका पेट दर्द से लेकर आपकी गॉल ब्लैडर सर्जरी तक सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च करी। इसके ऊपर मेडिकल, मैं जस्ट मेकिंग इट स्लाइटली शॉर्टर। इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च करी थी वैदिक ग्रेड में। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिस फॉर्चून, गिव्स यू एवरेज लक और नो लक। एंड मेरी ये थीसिस एक्सेप्ट हुई थी इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी फोरम से, एंड आई वाज प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड टू बी इंडक्टेड बाय द सेम, and also felicitated by the first numerologist to be published in the Guinness Book of World Record, Dr. J.C. Chaudhary.
on his platform, the International Numerology Forum. So the memories are still so fresh in my mind. So आज के दिन ही ये हुआ था. That's why I wanted to conduct this session today. आज के दिन ही ये हुआ था ये program, and I was blessed to be in Delhi with sir. एंड वहाँ पे हम लोगों ने, मेरे जैसे और बहुत सारे ऑकल्टिस्ट थे वहाँ पे, मेरे से सीनियर थे बहुत ज्यादा, वो लोग भी थे, एंड जो पद्मश्री अवार्डीज भी थे वहाँ पे. तो क्या देता है ये कॉम्बिनेशन, मैंने ऐसा क्या किया था वहाँ पे, तो बहुत शॉर्ट में मैंने इसको डिपिक्ट किया है. इस कॉम्बिनेशन में रिसर्च करके हमने पाया कि ये कॉम्बिनेशन ये चीजें आपकी लाइफ में मेडिकल जो प्रॉब्लम्स देता है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ. इट कैन गिव रिलेशनशिप इश्यूज टू लॉस ऑफ ए पेरेंट, डिलेड मैरिज और नो मैरिज, physically and mentally challenged people. Also, it can be a reason for miscarriage, abortions or no children, जैसा कि मैंने कहा. Yes. तो जब हम कहते हैं कि सब कुछ destined है, तो फिर कैसे न्यूमरोलॉजी वर्क करता है? न्यूमरोलॉजी वर्क करता है लाइक अ मेट डिपार्टमेंट, मौसम विभाग की तरह. मौसम विभाग क्या बारिश को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकता है ना. लेकिन वो हमें ये बता सकता है कि किस समय हमें बाहर जाना चाहिए, छाता लेके जाना है, रेनकोट लेके जाना है, या बाहर ही नहीं जाना है क्योंकि बाहर इतना तेज तूफान आया हुआ है कि वो आपको उड़ा के ही ले जाएगा, मिलोगे ही नहीं कहीं पे. इसलिए so there's where numerology helps us navigate our life. तो problems तो आएंगी and we can't stop the problem, but yes, of course, we can reduce the bad effects, the ill effects and the intensity of the problem, and we can sail through those difficult times in a very, very easier way. So these are few things which I do. I have 13 plus courses. Testimonies can be, taken up later. So I would also want my participants to introduce themselves. So I'll start with Ritu. Ritu, can you please introduce yourself? Uh, Ritu, I would ask you to unmute, please. Hi. Hi, Reshmi. I'm Ritu Ganeriwal. I'm an emotional healing coach and I help people understand their emotions and the emotions of the people around them so as to lead a happy and fulfilling life. So, this is my niche, and I think myself as to be my biggest competitor, and I always want to grow, and I have a very uh, I have passion towards numerology, towards those sciences which towards miracles. So I'm very much interested in those things, and few of numerologist things I have read and heard, and I know about myself and around people. This is when you mentioned in the gold mines, I thought I should see what you'll be. But Reshmi, I have a Loshu grid which is different. Actually, I think the Vedic Loshu grid is different from the Vedic grid is ordinary. Vedic numerology grid, which I just showed on the screen, is a different one, and Loshu grid Yeah. I'll be just showing on the screen. Okay. Okay. And since you work so much on the psychology and the emotions of people, so definitely you have the energy of Chandrama, that is moon, in your. But my two number is missing in my Loshu grid. Tell me your date of birth. It's fifth. It's 14th July. So 14 July, so of course you have a zodiac, you have the energy of Cancer, which is again moon. बिना मून के आप Okay. साइकोलॉजिकल हीलिंग्स कर ही नहीं सकते हो. Okay. But Loshu grid में दो नंबर नहीं था. तो ऐसे तो तो बहुत सारी चीजें, हमें बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है मगर वो होती है. So okay. my students, of course, they can confirm because they are the students of advanced Vedic numerology, and now they also want to learn Loshu grid to empower their predictions all the more. So Okay. we'll just hear from Kavita. So yes, अच्छा. Kavita, you have been, Kavita and Payal, they have been a consistent student of neuroscience with Rashmi. So we'll just hear few words from Kavita. Yes, Kavita. Hi, I'm Kavita Sharma, and I am astrologer, horary reader, and tarot card reader. होम मेकर हूँ मैं ऑलरेडी, और दो एक साल से मैं ये भी कर रही हूँ. ट्विटर पर्सनालिटी भी हूँ मैं, एंड नाउ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि रश्मि के थ्रू मैं कनेक्ट हुई, तो आई जस्ट गॉट लिटिल इंटरेस्ट इन दैट, एंड विद इन 15 days I just decided to do all the all the subjects of let
मतलब let me get all the knowledge what she has actually. That's all. Thank you so much, Kavita. Thank you so much, Ritu. So now we move on to Payal. Payal, kindly unmute yourself. Yes. Hi, this is Payal here. Um, I was interested in learning numerology from ma'am only. Actually, my Masi directed me to learn numerology from her. She's a great teacher and she has great in-depth knowledge. So I decided to learn basic, and as I learned basic from her, then my interest grew that I should go further for advance also, and now professional also in some time. That's Thank you it. so much, Payal. Thank you so much. Thanks a lot for joining and empowering the session all the more. So now we'll start a journey of Loshu grid. Loshu grid जैसे हम कहते हैं, as a name suggests, Loshu grid. Loshu ये एक modality है. This is a kind of modality of numerology. जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि how does it help. Just give me 1 single second to share the screen. Yes, I believe my screen is visible to all. Loshu grid is the modality of numerology which is very widely practiced globally. मैक्सिमम लोगों से जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के नाम पे वो लोग बोलते हैं हाँ हमको लोशू ग्रिड आता है. लोशू ग्रिड एक 3x3 का बॉक्स जिसको आप जिस भी तरफ से आप ऐड करो इट गिव्स द रिजल्ट्स ऑफ 15. तो ये है हमारा लोशू ग्रिड. अनलाइक द वैदिक ग्रिड नंबर्स का प्लेसमेंट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है. सो टॉप लाइन पे है हमारे 492, सेकेंड लाइन पे 357 एंड थर्ड लाइन पे 816. अब बोलने के लिए तो ये सारे नंबर्स है बट ऑल दीज नंबर्स रिप्रेजेंट आवर 9 प्लैनेट्स. 1 से 9 तक का नंबर्स का जो प्लेसमेंट है वो एक्चुअली हमारे नंबर्स नहीं है, वो हमारे प्लैनेट्स है जो अलग अलग बॉक्सेस में अपना प्लेसमेंट लेके बैठे हैं. अब इन सबका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है ऑफ कोर्स. यस, एंड ऑल थ्री ऑफ यू सिंस यू हैव नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी तो आप लोग को डेफिनेटली वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं. लोशो ग्रिड को बहुत जन चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं, कहते हैं ये चाइना का साइंस है. बट टू ब्रेक द मिथ, ऐसा नहीं है. लोशो ग्रिड जो है ये एक्चुअली हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था. एंड ये हमारा लक्ष्मी यंत्र है. अगर लक्ष्मी यंत्र को कभी आप गूगल करके भी देखोगे तो देखोगे कि ये लक्ष्मी यंत्र है. तो एक कछुए की पीठ पे लक्ष्मी यंत्र बना हुआ चाइना के एक राजा को वहां पे एक नदी के किनारे मिला था. उसके बाद से उन्होंने इसका नाम लोशु ग्रिड रख दिया. तो विद्या तो चाहे कहीं की भी हो, भारत की हो चाहे कहीं की भी हो, विद्या तो विद्या है ना. तो लक्ष्मी यंत्र है और ये इंडिया का साइंस है. इसको कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोई इसको ये ना समझे कि चाइना की जैसे और सब चीजों से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होता है तो इससे हमें बेनिफिट नहीं होगा. ऐसा नहीं है. ये बिल्कुल हमारे भारत का ही साइंस. तो लोशो ग्रिड में ये जो नंबर्स का प्लेसमेंट है इसमें आप कहीं से भी ऐड करके देख लो. टॉप लाइन को ऐड करो 15 आएगा. वर्टिकल को ऐड कर लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐड, डायगोनली भी अगर आप ऐड कर लो इसको 15 आता है. यही इसकी ब्यूटी है कि ऑल द नंबर्स गिव यू द सेम एनर्जी. कम्स टू 15 ब्रोकन डाउन टू अ सिंगल नंबर इट कम्स टू 6. 6 यानी कि वीनस यानी कि महालक्ष्मी का नंबर. मेक सेंस राइट. तो जैसा हम देखते हैं यहाँ पे 9 ग्रिड्स है
एंड एवरी ग्रिड इज डेजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, 1 से लेकर 9 तक के बीच में। अब इसमें 8 योगा या 8 प्लेन्स आती है, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल। सबका सम टोटल 15 पे आता है, जो कि अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होके 6 बनते हैं। ये तो हम सबको पता ही है न्यूमरोलॉजी में कि हमको कोई भी चीज जो है पे कंपाउंड होती है, हम उसको ब्रेक डाउन करके एक सिंगल नंबर पे लेके आते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोशो ग्रिड एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी? लोशो ग्रिड में वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम हमारे जो दो स्पेशल नंबर्स हम निकालते हैं, द बेसिक नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर। तो क्या होता है हमारा बेसिक नंबर? बेसिक नंबर वो नंबर होता है जिस दिन वो इंसान जन्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की डेट ही लें, 18 नवंबर 2024, आज के दिन बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया है, बहुत सारे सोल्स धरती पे आए हैं, अलग अलग योनियों में, अलग अलग फॉर्म्स में। तो किस डेट को आए हैं? 18 तारीख को आए हैं। तो 18 हैपन्स टू बी द बेसिक नंबर। बेसिक मतलब बेस, यानी कि रूट, यानी कि मूल। इसी मूल से नाम आता है मूलांक। तो हम कहते हैं ना इसका मूलांक ये है। और उसके जब हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देते, तो 18 नवंबर 2024, इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो जो भी कंपाउंड नंबर आएगा, अगेन ब्रोकन डाउन टू अ सिंगल नंबर, इट कम्स टू द डेस्टिनी नंबर। ये जो टोटल सम टोटल तो कितना आएगा आज का? 1 आएगा। आप लोग भी सब ऐड कीजिए, आज का डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है आज के डेट के लिए? नंबर 1 आ रहा है। नहीं आ रहा नंबर 1? नंबर हाँ, 1 ही नंबर 1 आ रहा है, ओके, थैंक यू। तो आज का जो बेसिक एंड डेस्टिनी है वो हो गया 9 and 1। A child born on today's date will have a basic number 9 and destiny number 1. Ritu, I believe you are matlab, able to follow up with these things, right? I know about it, Rashmi. You know about it, okay. Yeah, yeah. One more participant has joined, Kiran. Hello, Kiran. Since आप थोड़ा सा लेट से ज्वाइन, आप म्यूट हो। हेलो, हाँ म्यूट हो गई हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप क्लास फॉलो करो, फिर आपको जो समझ में नहीं आएगा आप लास्ट टाइम पूछना, ठीक है ना? ओके 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 ओके। यस। तो जैसे कि हम देखा कि हमारा ये जो बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर है, इन दोनों को हम टू रूलिंग नंबर्स ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ हम कहते हैं। ये जो दो नंबर है ये हमारे लिए लॉटरी के बराबर हम कहते हैं इसको। तो जो पहली लॉटरी हमारी होती है, पहली लॉटरी जो होती है उसको हम बोलते हैं मूलांक, एंड दूसरी लॉटरी जो डेस्टिनी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाग्यांक। लोशो ग्रिड में इनको मूलांक एंड भाग्यांक कहा जाता है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी जब पढ़ते हैं तब हम इसको बेसिक एंड डेस्टिनी कहते हैं। आप किसी भी नाम से इसको बुला लो, मीनिंग उसका बिल्कुल सेम ही रहेगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइफ एक गाड़ी है, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है, उस गाड़ी को कौन चला रहा है? हम खुद चला रहे हैं, आप चला रहे हो उस गाड़ी को। सो बेसिक नंबर इज द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ का गाड़ी। आपको नेविगेशन चाहिए ना, आपको तो गूगल चाहिए, न्यूमरोलॉजी आपको नेविगेशन सिखाएगा, गूगल करना सिखाएगा, अपनी लाइफ का गूगल आप खुद बनोगे। सो गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में, सो यू आर द ड्राइवर। तो बेसिक नंबर, आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, किस तरह से, किस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को, कैसे रिएक्ट करोगे, कब गुस्सा आएगा, कब खुश हो जाओगे, सब कुछ आपके बेसिक नंबर के अंदर छुपा हुआ है। यस, तो वो हो गया आपका ड्राइवर नंबर। अब ड्राइवर नंबर जो हो गया मूलांक, यानी कि बेसिक नंबर, यानी कि आपका रूट, आप कहाँ से आए हो, कहाँ, लेकिन आपको जाना कहाँ है, कोई डेस्टिनेशन तो होना चाहिए, मंजिल तो होनी चाहिए कोई जहां आपको जाना है। तो मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन, वहीं से आता है हमारा डेस्टिनी नंबर, दैट इज द कंडक्टर।
बस में तो आप बैठ गए, सवारी में तो आप बैठ गए, लेकिन आपको जाना कहाँ है? तो वो सवारी को कहाँ जाना है कौन बताता है? कंडक्टर बताता है। बस में हम सब कभी ना कभी तो बैठे ही हैं। तो कंडक्टर गाइड करता है ड्राइवर को कि कहाँ जाना है। हावड़ा 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 हावड़ा, लेकटाउन लेकटाउन लेकटाउन, वही चिल्लाता है ना। तो यस, आपका जो कंडक्टर कौन है? आपका डेस्टिनी नंबर आपका कंडक्टर है, जो गाइड करेगा कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, आपको कहाँ पहुंचना है। So destiny number again becomes a very very important number of your life. तो आप लोग सबके पास अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ है। फटाफट आप लोग अपना अपना बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करके रख लो। सो पायल एंड कविता का तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मुझे पता है। ऋतु एंड किरण आप लोग कैलकुलेट कर लो। So, ऋतु मेरा डन? भी कैलकुलेटेड है रश्मि। ओके, वेरी नाइस। तो क्या है आपका? आपने कहा था अभी मेरा 14। 5 है 5 दोनों। एंड 5। ओके हाँ, ग्रेट। 5 एंड 5। ठीक है, एंड आप लोग मेरा हाँ कुआ बताएं। नंबर भी निकाला हुआ है मेरा। ओके ग्रेट। तो अब जैसे हम आते हैं, एक और जो एक अमेजिंग डेटा हमको यहाँ से मिलती है, हम लोग इसको 3 अमेजिंग लॉटरीज बोलते हैं। तो और एक जो अमेजिंग नंबर हमको यहाँ से मिलता है वो होता है हमारा कुआं नंबर। अब कुआं नंबर का मतलब वो जो कुआं होता है जिससे पानी निकलता है, वो वाला कुआं नहीं है ये एक चाइनीज टर्मिनोलॉजी है कुआं नंबर। इसका मतलब एक स्पेशल हिडन नंबर जो होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जो आपको एक तरीके से निकालना होता है। मेल का कुआं नंबर निकालने का सिस्टम अलग होता है, फीमेल का कुआं नंबर निकालने का सिस्टम बिल्कुल अलग। अलग होता है इसमें। यहाँ पे बेसिक नंबर आपने निकाला द डे ऑफ बर्थ से, डेस्टिनी नंबर आपने निकाला द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ से। कुआं नंबर के लिए आपको दरकार पड़ेगी सिर्फ आपके ईयर ऑफ बर्थ की। मतलब 2024 में जो बच्चा बॉर्न हुआ है, तो उसका हम लोग सिर्फ कुआं नंबर निकालने के लिए सिर्फ लेंगे 2024, और उसको ब्रेक डाउन करेंगे एक सिंगल नंबर पे। तो 2 + 0 + 2 + 4 कम्स टू 8। ईयर ईयर ऑफ बर्थ का टोटल हमने निकाल लिया, कितना आया? 8 आया। 8 को हमने साइड में रख लिया। अब हम देखेंगे कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो बंदे का डेट ऑफ बर्थ हम लेके रखे हैं, चाहे हम खुद का भी अगर लेके रखे हो, तो वो बंदा मेल है कि फीमेल है। अब यहाँ पे जेंडर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंदा मेल है कि फीमेल है वो हमें जानना है। बंदा अगर मेल है तो इसका फिक्स्ड फॉर्मूला है। बंदा अगर मेल है तो 11 माइनस जो आपका सम टोटल ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है, जो अभी 8 निकला 2024 का 8, आपकी जो भी ईयर ऑफ बर्थ है आप उसका टोटल निकालो, तो 11 माइनस दैट नंबर इज योर कुआं नंबर, अगर मेल है तो। और अगर फीमेल है, मेल के केस में हम माइनस करते हैं, फीमेल के केस में 4 प्लस करते हैं। मेल के केस में 11 माइनस करते हैं, और फीमेल के केस में 4 प्लस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुआं नंबर, तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉटरी। फर्स्ट लॉटरी हमारा ड्राइवर नंबर, सेकंड लॉटरी हमारा कंडक्टर नंबर, थर्ड लॉटरी हमारा कुआं नंबर। यस, सबने निकाला? ऋतु आपका कुआं नंबर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है? 6। 6 आ रहा है, ओके। पायल आपका? मैम 2। हाँ, 7 + 4 2 आएगा, राइट। एंड कविता आपका? 2। कविता 2 आ रहा है, हाँ। ओके। हाँ, आपका भी 2 आएगा, ठीक है। 7 + 4 2 आएगा, ठीक है। किरण आपका? मेरे तो 8 + 4 12 आ रहा है। आपका ये आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है किरण? डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 68। 19 फरवरी 68। फरवरी 1968। 1968 को पूरा हाँ, प्लस करो। 68 को प्लस किया है तो 14 68 हुआ। को, ओनली 68 को नहीं, 1968 को पूरा प्लस करना है। 1 हाँ + नहीं, 14 + 6 हाँ, + हाँ तो वो 8 हुआ।
नहीं 7 होगा ना। अच्छा पूरा वैसे, अच्छा 9, 10, 6, 16, 24, 24 हुआ ना, 24 को ऐड करेंगे, गड़बड़ हो रहा है क्या? 10, 6, 16, 17, 24, 1968 को आप प्लस करो, 6, 9 + 1 10, 10 10, 16, 10 + 16, 16 + 8 16 कितना हुआ? + 8, 24। 24 को अब हम सिंगल नंबर करेंगे, 6 आया, ठीक है। हाँ 6, 6। 6 आया, हाँ 6 में आप 4 प्लस करेंगे कितना, 10 हुआ। 10, 10। तो सिंगल नंबर करेंगे, 1 हो गया। 1 हो गया। तो आपका कुआं ओके नंबर हाँ, 1 है। 1 है, ठीक है। हाँ मैं, ठीक है। गड़बड़ थी मेरा। हाँ हाँ। ओके ठीक है। हाँ अब आपको ये जो आपके जो नंबर्स आपने कैलकुलेट किए हैं, अभी जो आपके नंबर्स आए हैं, ये नंबर, हाँ तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ आया, आपको उसको ऐसे लोशो ग्रिड में लगाना है। जो नंबर की जगह जहाँ पे है, वहीं पे आप हाँ। नंबर लगाना है। अच्छा। सबको ये लगाइए अपने अपने लोशो ग्रिड में। हम्म, समझ में नहीं आया। एक बार फिर बताइए, कैसे बताएं? आपका क्या बताया आपने डेट ऑफ बर्थ? मेरा 19 फरवरी 68 है, मूलांक 1 हुआ। 19 फरवरी है भाग्यांक भी। ना, तो 19 फरवरी, हाँ सपोज यहाँ पे 19 फरवरी 1968 है। 19 का हाँ 1 यहाँ लगाइए, 19 का 1 यहाँ पे लिखिए। ऐसा एक बॉक्स बनाइए, 3 बाई 3 का ऐसा एक हाँ बॉक्स बनाइए। हाँ हाँ, ये बना लिया। ठीक है, 19 का 1 यहाँ पे लिखा। जहाँ 1 लिखा हुआ वहां लिखे क्या? हाँ, यह 1 लिखिए। हाँ 1 लिखा। 9 लिखा यहाँ ऊपर। 9 की जगह यही रहेगी, जगह सबकी फिक्स्ड है। 1 अच्छा, का घर ये तो अपने घर में जाएगा, 9 का घर ये अपने घर में जाएगा। फिर 9 तो मेरे कुछ आ नहीं रहा है। 8 आ रहा है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर पे क्यों जा रहे हैं आप? अच्छा तो 19 आपको आपको ये भरना है, लोशो ग्रिड को भरना है, डेट ऑफ बर्थ से भरना है आपको। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से भरना है। अच्छा, तो है तो 99 है, या तो 19 है। 99, ये देखो, सब आप मत देख, आपको ये आप मत देखो। मैंने आपको लोशो ग्रिड भरने के लिए कहा, तो मैंने आपको लोशो ग्रिड दिखाया था ना अभी कुछ देर पहले। अच्छा। ये है हाँ ये लेटो ग्रेड, हाँ हाँ ये हाँ। मैंने प्लेसमेंट दिखाया कि कौन सा नंबर अच्छा कौन सा है। तो आपका अच्छा। 1 की जगह 1 है, तो यहाँ पे हाँ, आपका 1 से ज्यादा भी आ सकता है। जहाँ जो वर्ड है वही पे उसको रख दें। अच्छा, हाँ। नाइन हाँ, नाइन नाइन। 1 की जगह 1 लिखा, 9 की जगह 9 लिखा, हाँ उसके फरवरी का हाँ लिखा, फिर 1 आ गया। हाँ। सेंचुरी नंबर भी यहाँ पे हम लोग लेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी अच्छा, स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेंचुरी नंबर भी ग्रिड में भरा जाएगा। तो एक और 1 आ गया, एक और 9 आ गया किरण आपकी चार्ट में। फिर 6 का 6 आया यहाँ पे, और 8 का 8 आया। 3, 5। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ को खाली भरा, ठीक है। हाँ, वाला 19, 2, बेसिक डेस्टिनी को भरेंगे, 68। कुआ नंबर भी भरेंगे यहाँ पे। वन नंबर भी, वन नंबर से कहाँ लिखेंगे? 1 की जगह तो 1 लिख दिया, वो प्लेस तो भर गया। 1 लिखिए, आपका आपका 4 बार 1 आएगा। तो उस उसी स्क्वायर में 4 बार 1 लिख दें क्या? हाँ। हाँ। अच्छा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन एल्स। किरण जी की तरह और किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक है, नहीं है ना? ठीक मैंने है। पहली बार ही आपका ये ज्वाइन किया है, हाँ सब ठीक है, चीज आप आ लिख गई है, लिया आपने? ठीक है। हाँ, हाँ लिख लिया। हाँ ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अपने आप को काइंडली म्यूट कर लीजिए, मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। ओके ओके। अब आपने अपना लोशो ग्रिड आपने भर लिया, आपने देख लिया कि जैसे किरण जी का एग्जांपल अब लेते हैं, इनकी ग्रिड में 4 बार 1 आया, ऊपर में 2 बार 9 आ गया। इनका डेस्टिनी नंबर क्या है आपका किरण जी? 8। 8 है। तो 8 भी, हाँ। 8 भी आपके 2 बार आ गया, एक बार 6 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, 2 बार 8 आ गया, और अच्छा। एक बार 2 आ गया, ठीक है। हाँ 1 बार 2।
ठीक है, अब आप उसको रख के रखिए। अब हम देखते हैं कि आपका लोशो ग्रिड आपसे क्या कहना चाह रहा है। अच्छा। एज वी ऑल नो द रिलेशनशिप अमंग नंबर्स, कि कौन सा नंबर का कौन सा प्लैनेट होता है एंड वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बट स्टिल आई रिपीट वंस अगेन, एक नंबर जो होता है सूर्य का नंबर होता है। सूर्य कौन है? राजा है। इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम पढ़ेंगे हमारी क्लास में, जैसे जैसे फर्दर हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे हम। मून क्या है? दो नंबर क्या है? मून है चंद्रमा, यानी कि रानी। अब हमने जैसे देखा किरण का जो है बेसिक नंबर इज कमिंग टू नंबर वन, दैट मीन्स शी हैज द एनर्जी ऑफ नंबर वन इन हर सेल्फ। उनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर वन का एनर्जी है। बेसिक नंबर से आ रहा है, सन से सूर्य आ रहा है, यानी कि यानी कि राजा, राजा वाली एनर्जी उनके अंदर हमेशा रहेगी। शी वुड बी कॉन्फिडेंट, अथॉरिटेटिव, एंड वो किसी भी सिचुएशन में अपनी बात को प्राथमिकता देगी, अपनी बात को आगे रखने का प्रयास उनका रहेगा। देन वी कम टू नंबर टू, दैट इज चंद्रमा यानी कि मून। चंद्रमा अगर एक नंबर अगर राजा है तो दो नंबर कौन है? दो नंबर रानी है। यस। तो किरण जी की चार्ट में दो नंबर भी आता है। जैसा मैंने ऋतु के लिए कहा, ऋतु को मैंने बोला कि आप साइकोलॉजिकल हीलिंग करती हो, यू आर अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल हीलर, इमोशनल हीलर। यू एनेबल पीपल टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ देमसेल्स एंड पीपल अराउंड देम। यस। चंद्रमा इज ऑल्सो योर सबकॉन्शियस माइंड। सो दो नंबर इज मून चंद्रमा, दैट इज द क्वीन। वेरी वेरी पेशेंट पर्सनालिटी के लोग होंगे ये, बहुत शांत सुंदर। चंद्रमा को देखते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? कुछ शांत सुंदर सा कुछ आता है हमारे मन में। जितने भी हमारे रोमांटिक गाने जो अभी तक से पिक्चराइज हुए हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं मून आता ही है। चांदनी रात में, चांद के नीचे, चांद से सुंदर बहू, चांद सा बेटा, ये सब हम सुनते रहते हैं चांद के बारे में। यस। देन कमिंग टू नंबर थ्री, दैट इज जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। Devguru Brihaspati, as the name goes, these people would be very good counselors, consultants, teachers, healers, mentors. Yes, बहुत ज्यादा इनके अंदर एनर्जी होगी एंड ये लोग के अंदर विजडम बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज जुपिटर हैपन्स टू बी द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा है तो इनके इनकी जो बातें होंगी वो भी बड़ी बड़ी होगी। जो भी काम करेंगे बड़ा काम करना चाहेंगे। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उसके फादर कोई दुकान चलाते हैं, गारमेंट्स की दुकान चलाते हैं फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को बोलेंगे तुम पढ़ाई लिखाई हो गया, अब चलो तुम्हारे लिए एक दुकान तो मेरी है ही, हम तुम्हारे लिए एक और दुकान खुलवा देते हैं। बच्चा क्या बोलेगा? हम दुकान उकान में नहीं बैठेगा, हम मॉल खोलेगा अपने लिए, बड़ा शोरूम बनाएगा। इस तरह की उनकी बातें थोड़ी बड़ी बड़ी बातें होंगी क्योंकि बड़ा प्लानिट है। नंबर फोर इज राहु। यस। राहु क्या बोलता है? राहु हो गया यहाँ पे काइंड ऑफ रॉबिन हुड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बिल्कुल अलग हट के सोचने वाला। उसकी थॉट प्रोसेस औरों से बिल्कुल अलग रहेगी, तो इसको हम लोग साइंटिस्ट भी बोलते हैं, रॉबिन हुड भी बोलते हैं। रॉबिन हुड कौन था? जो ज्यादा अलग हट के जिसकी थिंकिंग थी, कुछ भी काम करना होता था तो वो बहुत उसमें डिफरेंट तरह से अपनी एनर्जी को पुट अप करता था एंड फिर उस काम को करता था। तो ये लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं। दीज पीपल कैन ऑल्सो बी वेरी गुड इन पॉलिटिक्स। यस। तो राहु यहाँ पे अब क्या करता है? राहु राजा को बोलेगा अगर आपका पैसा कोई मार के बैठा और आपको नहीं दे रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज है, मैं आपका वहां से पैसा निकलवा के ला दूंगा। तो राजा के साथ वो इस तरह से वो जेल होता है। नाउ कमिंग टू नंबर फाइव, दैट इज मर्क्यूरी यानी कि बुध। बुध के लिए हम कहते हैं बुध माने बुद्धि, बुध माने पैसा। बुध यानी कि गणेशा को रिप्रेजेंट करता है, गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी की कृपा के बिना हम शुरू नहीं करते, गणेशा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारे प्लानिटरी कैबिनेट में अगर ये राजा है, ये रानी है, ये उसके देव गुरु बृहस्पति है, ये उनका रॉबिन हुड है जो उनके लिए साइंटिस्ट वाले काम भी करता है,
अलग अलग इनोवेशंस करवाता है, तो ये है उसका प्रिंस चार्मिंग, यानी कि उसका उत्तराधिकारी। तो ये प्रिंस है तो इनके अंदर प्रिंसली क्वालिटीज भी होंगे। ये लोग बड़े ठाट बाट वाला काम करेंगे और ठाट बाट के साथ ही रहेंगे। इन लोग की थॉट प्रोसेस बिल्कुल उस तरह से होगी कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है एंड उसके साथ हमें बहुत सारा ठाट बाट भी हमें हमारे लाइफ में होना चाहिए। तो ये लोग काम भी उस तरह से करेंगे जैसे फाइनेंस प्रोफेशनल्स होंगे। फाइनेंस वाले कामों में ये लोग ज्यादा पाए जाएंगे। प्रॉपर्टी वाले काम में भी ये लोग मिलेंगे, जहां से इन लोगों को प्रॉपर्टी के द्वारा अगर इन लोगों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे बनाने की, तो उस काम में भी मिलेंगे। सिंस प्रिंस है तो ये लोग अपनी उम्र से बहुत छोटे भी दिखते हैं। संतूर का एक ऐड आता है ना, आपको देख के आपकी त्वचा से आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। नंबर 5, इंस्टेंटली नंबर 5 हम कह सकते हैं। यस। नंबर 6 इज वीनस, दैट इज शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। एक हमने देखा देव गुरु बृहस्पति, एक हमने देखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों ही गुरु है, लेकिन दोनों की क्वालिटीज में थोड़ा सा अंतर होता है। अब सिंस गुरु है तो काउंसलर कंसल्टेंट ये लोग भी होंगे, डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि गुरु है। इनके पास भी लोग आते हैं, लेकिन ये जो गुरु है कैसे गुरु है, ये वो पहले वाले गुरु की तरह दिन भर पढ़ो रे नहीं करेंगे। ये बहुत क्रिएटिव होंगे, अपने क्रिएटिव स्टाइल से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्रिएटिव तरीका से अपना अलग अलग तरीका से काम करेंगे। जैसे ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये इनका कहावत होगा। अरे दिन भर काम करने से नहीं होगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, तो काम भी फास्ट होता है। So yes, Venus is also responsible for all kind of comforts, luxuries, materialism, family bonding, and yes, Venus आपके स्पाउस का भी कारक होता है। अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड का कारक है, हस्बैंड है तो वाइफ का कारक है। नंबर 7 इज केतु। नंबर 7 इज केतु। केतु और राहु को हम लोग छाया ग्रह भी बोलते हैं। क्यों छाया ग्रह बोलते हैं, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोग को बताऊंगी। पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग को स्टोरी बताऊंगी। तो स्टोरी से भी हम प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज्यादा समझ पाते हैं। कौन इंसान कैसा होगा, उसके ट्रेट्स कैसे होंगे, वो कैसे कैसे चीजों को हैंडल करता है, किस डायरेक्शन में वो जाएगा, कैसा करियर लेगा, कैसा एजुकेशन होगा, बहुत कुछ हम उसकी स्टोरीज से भी समझ पाते। तो हर प्लैनेट के पीछे एक स्टोरी होती, हर प्लैनेट के पीछे स्टोरी होती है। हम कहते हैं चांद के चेहरे पे दाग होता है, चांद के ऊपर दाग है। तो क्यों कहते हैं हम ऐसा, क्या किया था चांद ने ऐसा जो उसके चेहरे पे दाग हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं जो लोग मून से रूल्ड होते हैं, जिनका बेसिक है डेस्टिनी में मून आता है, उनके चेहरे पे कुछ ना कुछ दाग मिलेगा ही आपको, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। चाहे वो रैशेस हो, चाहे पिंपल्स हो, चाहे कोई कट का निशान हो, कोई वजह से चोट लगी हो, वहां पे स्किन बर्न हो गई हो, समथिंग और द अदर, एक दाग आपको उनके चेहरे पे मिलेगा। कुछ नहीं तो ब्यूटी स्पॉट मस्सा भी हो सकता है, जो कि उनकी ब्यूटी को थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है। यस। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है। तो केतु जो है वो छाया ग्रह है, यानी कि राहु की बॉडी। राहु जो है वो सिर्फ सर है, केतु उसकी बॉडी, इसलिए इसको छाया ग्रह बोलते हैं। सिंस इसके पास सर नहीं है तो ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं एंड बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो किंगडम में राजा का खजांची है, उसका राज पुरोहित है, डेली की पूजा पाठ वगैरह यही आके करता है। अब हम आते हैं शनि के ऊपर। सूर्य पुत्र शनि, कभी आप लोग ने ध्यान दिया इस नाम के ऊपर। शनि को हम लोग शनि नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं सूर्य पुत्र शनि। क्यों हम लोग बोलते हैं सूर्य पुत्र शनि, क्योंकि ये है सूर्य के पुत्र। शनि जो है सूर्य के ही पुत्र है। अब सूर्य के लिए हम बोलेंगे सूर्य इतना गोरा चिट्टा हर समय चमकता रहता है, और शनि के लिए हम बोलते हैं भाई काला एकदम सैटर्न मतलब काला। तो कहाँ मैच हुआ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। शनि देव को मिला हुआ है यहाँ पे जगह जज का, राज्य में एक जज होना चाहिए ना, उनके एक तो वो होने चाहिए, लॉयर होने चाहिए, जज होने चाहिए, जो कोई बदमाशी करेगा, कोई सही काम नहीं करेगा,
पनिशमेंट कौन देगा, न्याय कौन करेगा, मतलब सो ये न्यायाधीश है, उस राज्य के न्यायाधीश है शनि देव, सूर्य पुत्र शनि। तो शनि इज ऑल्सो नोन एज, सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज अ कार्मिक प्लैनेट, कर्म फल दाता। Then we come to number 9, Mars Mangal, that is the commander in chief. राज्य हमने देखा, अब उसकी सीमा की सुरक्षा कौन करेगा, सेनापति करेगा ना, तो ये सेनापति है हमारे। तो इस तरह से 9 नंबर को जब हम समझ लेते, 9 नंबर को जब हम अलाइन कर लेते, तो हम समझ पाते हैं कि हमारे ओशो ग्रिड में जो नंबर्स है हमारे पास में, वो नंबर्स हमें कैसे कैसे एनर्जी हमको दे रहे हैं। तो किरण जी को छोड़ के और किसी को लोशो ग्रिड बनाने में कोई असुविधा हो रही है? नो, नो रश्मि। नहीं, ठीक है। सो नाउ वी विल कम टू द, जो हमारे 8 योगास और 8 प्लेन्स है ना, हम लोग उसके ऊपर आएंगे। अभी हमने समझ लिया कि हमारे प्लैनेट्स हमसे क्या कह रहे, तो आपके जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबकी ट्रेड्स आपके अंदर मिलेगी, लेकिन जो नंबर्स बेसिक एंड डेस्टिनी से आते हैं उसके ट्रेड्स आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मिलते हैं। यस, तो अब प्लेन्स भी तो होते हैं हमारे। अब अब जैसे ये हमारा लोशो ग्रिड है, तो हमने देखा कि ये हमारे अलग अलग प्लेन्स होते हैं, जैसे 492 प्लेन है, 357 एक प्लेन है, 816 एक प्लेन है, उसी तरह से 438 एक प्लेन है, 951, 276, और हमारे दो डायगनल्स होते हैं, 258 और 456। ये हमारे प्लेन्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक आप लोगों में से किसी का भी एक भी प्लेन कंप्लीट हो रहा है। कविता का और पायल का मुझे पता है कि नहीं हो रहा है, ऋतु और किरण का भी नहीं हो रहा है, आई बिलीव। क्या क्या मेरा चीज? 816 हो रहा है मैम। 816, हाँ जी, बोलो पायल। पायल का हाँ 816 कंप्लीट हो रहा है, गॉट इट। आपका कोई हाँ प्लेन कंप्लीट हो रहा है इसमें से? हाँ, मेरा 456 और 357 कंप्लीट हुआ है। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जब ये कंप्लीटेड प्लेन्स होते हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, कैसा होता है वो इंसान मतलब जब उनके वो प्लेन कंप्लीट होते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेन हमारा होता है, हम उसको 438 प्लेन, उसको हम लोग बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन मतलब ये इंसान की थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होगी, ये इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, विजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत आगे की चीजों को विजुअलाइज कर सकता है। रादर इनके लिए हम ऐसा कहते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से और लोग सोचना बंद कर देते, इसको हम लोग चाणक्य प्लेन भी बोलते हैं। 4 नंबर ब्रेन का नंबर, राहु है। 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति, दिमाग का नंबर। यस, साथ में आ गया नंबर 8, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों? बिकॉज न्यायाधीश है। क्या सही है क्या गलत है उस पर्सन के पास अथॉरिटी करने की। यस, हर इंसान तो वो जजमेंट नहीं कर सकता है ना, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यस, ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको वो अथॉरिटी मिली है करने की, तो डेफिनेटली इसका मतलब उसके पास वो कैलिबर है, उसके पास वो कैलिबर है, इसलिए तो वो चीज वो कर पा रहा है ना। तो हम इसको बोलते हैं थॉट प्लेन, विच इज अ वेरी वेरी मतलब इफेक्टिव प्लेन। अब ये लोग को प्रॉपरली अगर गाइड किया जाए तो ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेट लॉयर्स, बहुत वाह वाह। अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। तो एज अ स्टूडेंट, जब हमारे पास कोई स्टूडेंट अगर काउंसलिंग के लिए आता है, तो डेफिनेटली हम उन लोगों को गाइड कर सकते हैं, भाई 4 3 प्लेन 8 का प्लेन कंप्लीट हो रहा है, सो यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल, यू कैन गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑल्सो, बिकॉज आपके पास में वो क्वालिटीज ठाकुर जी ने आपको दे के भेजी है। ठीक है, सेकंड प्लेन जो हमारे पास में आता है वो होता है विल प्लेन। मतलब आपकी विल कितनी स्ट्रांग है, आप कितने डिटरमिन्ड हो किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम आप कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप कर पाते हो। 9 नंबर कमांडर इन चीफ, डिटर्मिनेशन का नंबर ऑफ कोर्स। 5 नंबर जो है बुद्धि का नंबर, और 1 नंबर सूर्य का नंबर, यानी कि कॉन्फिडेंस का नंबर।
तो हम इनके लिए क्या बोल सकते हैं? विल प्लेन है, मतलब हिम्मत वाली प्लेन। ये लोग स्ट्रांग होते हैं, इनके अंदर बहुत हिम्मत होती है। लाइफ चाहे इनको कितना भी रोलर कोस्टर राइड दे, लाइफ चाहे इनको कितना भी अप्स एंड डाउन्स दे, इन लोग वापस से बाउंस बैक करने का कैपेसिटी इनके अंदर रहता है। ये लोग कभी भी मतलब डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी भी लूजर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे। रहेंगे भी तो बहुत थोड़े से समय के लिए रहेंगे, तुरंत बाउंस बैक करेंगे, बोलेंगे नहीं, मुझे वापस खड़ा होना है, मुझे वापस काम करना है। यस, ऐसा बिल्कुल इनका थॉट प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम एक्शन प्लेन के ऊपर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब आप उनको काम बता रहे होंगे तो क्या होगा, आप आधी आधा काम बताएं और वो उस समय तक वो जहाँ पे वो काम करना, उस डेस्टिनेशन तक भी पहुंच गए, आधी बात सुन के वहां पहुंच गए। अक्सर घर का स्टाफ ऐसा चीज कर सकता है, वहां से फोन करेंगे, अरे आपने क्या क्या सामान लाने के लिए बोला था, मैं तो भूल गया। ठीक है, एक्शन, क्विक एक्शन प्लेन, ये लोग बहुत फास्ट एक्शन लेंगे। 276, बहुत फास्ट एक्शन लेने वाले लोगों की बहुत फास्ट अप्रोच होगा इनका, मतलब हेस्ट, हेस्ट में काम करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम के मामले में ऐसा है, हर चीज में कोई भी डिसीजन लेना होगा, क्विक डिसीजन मेकर। और लाइफ में चीजें भी इनके साथ चीजें भी वैसी उतनी ही फास्ट होती हैं। तो एक बार इन्होंने कुछ सोच लिया मुझे ये करना है, तो ये लोग उसको करके ही मानेंगे। तो आज अभी अभी चाहे कलकत्ता में भयंकर ठंड पड़ रही हो, अगर उनको बाहर जाके आइसक्रीम खानी है तो वो करेंगे ही करेंगे। और साथ में अगर विल प्लेन आ गया तो यस, एक्शन प्लेन तो और ज्यादा एक्शन उसका लेके रहेगा। ऐसा हम इनके बारे में देख सकते हैं। अब ये वाली है मेंटल प्लेन। अब मेंटल का बहुत मीनिंग होता है। मेंटल का मतलब ये नहीं कि वो इंसान मेंटल है यानी कि पागल है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे इनके लिए। मेंटल प्लेन मतलब ये लोग होते हैं कि जो अपने दिमाग, जैसे हमने 438 देखा, थॉट, वो इंसान सोचेगा फिर काम करेगा। ये जो इंसान होगा, ये सोच के तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा कभी कभी ये बिना सोचे समझे भी काम कर सकता है। इसकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी, इसको हम कह सकते हैं पागल हाथी वाली मेमोरी। एक बार जो चीज को देख लिया उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, सांप की आंख की तरह उसके अंदर छप गया वो चीज। मतलब इनके पास इतनी शार्प ब्रेन्स होती है। ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनके पास ये प्लेन है। आप लोग में से किसके पास ये प्लेन है? किसी के पास भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये वाले ये जो होते हैं, ये लोग औरों से हट के थोड़ा सोचते हैं, बट लॉजिकल सोचेंगे। नाउ वी कम टू द इमोशनल प्लेन जो ऋतु के पास है। तो उनके पास इमोशनल प्लेन भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो ऋतु, 2 नंबर आपको चार्ट में नहीं दिख रहा है, जोडियक से आ रहा है, लेकिन एक और कारण अब मैंने आपको दे दिया कि क्यों आप इमोशनल हीलिंग में इतना इंक्लाइंड हो गए हो, क्योंकि आप खुद बहुत इमोशनल हो। तो जो, जैसे मैंने क्या कहा, जो इंसान जैसा होगा उसी तरह का करियर चूज करेगा, उसी तरह के काम करके उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसी जगह से उनका मन लगेगा। तो यस, ये आ गया इमोशनल प्ले। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं ये लोग बहुत इमोशनल होने के साथ साथ दे हैव गोल्डन हार्ट्स। इनका बहुत सुंदर मन, बहुत सुंदर हृदय, दिल जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सुंदर इनका होता है। दूसरे का दुख दर्द ये लोग कभी देख नहीं सकते। ये लोग अपना अपने दिल की सुन के काम करते, दिमाग के नहीं सुनेंगे, दिल की सुन के काम करते। तो क्या होता है, ये लोग औरों पे भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो इनको धोखे भी बहुत मिलते हैं लाइफ में, बट विजडम है, बिकॉज नंबर 3 है, विजडम है। पैसा भी है, 5 माने बुद्धि, 5 माने पैसा। यस, और नंबर 7 भी है, एम्पैथी का नंबर। तो दे ऑल्सो डू वेरी गुड इन लाइफ। और इनके पास मल्टीपल डिग्रीज भी हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा एजुकेशन भी इनके पास हो सकता है। ऋतु, आपके पास है ऐसा? मैं तो क्लास 12 तक पढ़ी हूँ, बट पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब वापस से अभी 2 साल से ऐसे पता चला कि मेरे को पढ़ने में इतना, मेरा को पढ़ाई इतना पसंद है। आई स्टार्टेड अगेन स्टडिंग एंड
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्कूल कॉलेज जाके ही पढ़ो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो देन ऑल्सो वी से, जैसे अब अभी ऑकल्ट की पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, ये भी एक काइंड ऑफ हायर एजुकेशन है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड टू लर्न ऑकल्ट ना, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, Yeah. न्यूमरोलॉजी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एस्ट्रोलॉजी। यस, तो Okay. ये भी आपका हायर एजुकेशन। यस, अब प्रैक्टिकल प्लेन जो हमारी पायल के पास है, तो प्रैक्टिकल प्लेन यानी कि 816, तो एज द नेम सजेस्ट ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, किसी भी बात की पूरी तह तक जाएंगे उसके बाद ही वो काम करेंगे। दे गो इन डेप्थ एंड आर वेरी लॉजिकल, और एट टाइम्स इन लोग को कन्विंस करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग पूरी, जब तक पूरी बात की तह तक नहीं जाएंगे तब तक किसी के बोलने पे वो काम नहीं करेंगे, वो लोग अपने रिसर्च के अनुसार ही वो काम करेंगे। बट वेरी डाउन टू अर्थ पीपल ऑल्सो। 8 नंबर है, वेरी डाउन टू अर्थ। नंबर 6 है, फैमिली का नंबर, तो ये लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं। अब हम और प्लेन्स अगर देखें, अब हमारे पास में आते हैं दो राजयोग। दो राजयोग आते हैं हमारे पास में, एक 258 और एक 456। आई थिंक पायल आपके पास में 258 भी है ना। 258 जो है हमारा राजयोग 2 बोलते हैं, पहला राजयोग 456 जो ऋतु के पास है, 456 द फर्स्ट राजयोग। तो 258 को हम अर्थ प्लेन भी बोलते हैं। अर्थ प्लेन बोलने का मतलब ये होता है कि ये लोग के पास में अच्छी प्रॉपर्टी होती है, एटलीस्ट अपना घर तो होगा ही। और अगर ये लोग रियल एस्टेट में डील करते हैं, रियल एस्टेट का या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं, तो लोग उसमें सक्सेसफुल होते ही होते हैं। यस। नाउ वी कम टू 456। 456 इज नोन एज द फर्स्ट राजयोग। यस, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये लोग अपनी लाइफ में एक समय पे बहुत सक्सेसफुल होंगे, इनके पास काफी अबंडेंस होगा, प्रोस्पेरिटी होगा। बिकॉज देखिए 5 नंबर प्रिंस है, 6 नंबर पैसों का लग्जरी का नंबर, और 4 नंबर इनोवेटिव थिंकिंग है। तो ये इंसान अपनी इनोवेटिव थिंकिंग से भी बहुत ज्यादा आगे लाइफ में सक्सेसफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल्स हमने लिया, रामदेव बाबा एकदम स्क्रैच से शुरू किया था उन्होंने, वो एक दलित परिवार को बिलोंग करते थे, वहां से अब वो एक ब्रांड बन गए। इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी सारी प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा। यस। रश्मि, एक चीज पूछना चाहती हूँ। हम्म। मेरा ग्रिड में 2 बार 5 आता है, हम्म। तो हम कहीं पे सुने हैं कि 2 बार 5 आना मतलब यू हैव एक्सेस ऑफ मर्कुरी, एक्सेस ऑफ। बुध प्लैनेट। मतलब तुमको ग्रीन नहीं पहनना चाहिए, एंड तुमको मतलब तुम्हारा फेवरेट चीज होगा, कलर होगा ग्रीन, बट यू शुड नॉट वेयर टू मच ऑफ ग्रीन। वो तो एक रेमेडीज का पार्ट हो गया, लेकिन एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी वाली ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी किसी की अच्छा, चार्ट में तो 3 बार 4 बार भी आता है। ओके। तो ऐसा नहीं होता है, बट थिंग्स आर डिफरेंट। जैसे अभी अब मैंने जो प्लेन्स की बात की, अभी तो मैंने आप लोग को सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। अभी एक एक प्लेन के बारे में हम लोग आधा आधा घंटा तक बात कर सकते हैं, एक एक प्लेनेट के बारे में हम लोग पूरा पूरा दिन बात कर सकते हैं। ओके। इसके इतने ज्यादा ट्रेड्स होते हैं। तो जितना ज्यादा आप इस साइंस में अंदर डेल्व करते हो, अंदर आप जाते हो, रिसर्च करते हो इसमें और ज्यादा फाइंड आउट करने की करते हो, तो उतना ज्यादा अच्छे प्रोडिक्शंस आप दे पाते हो, उतना ज्यादा आप चीजों को समझ पाते हो। न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं कि सपोज कोई बिजनेसमैन है तो हाउ विल न्यूमरोलॉजी हेल्प दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ऋतु इज अ इमोशनल हीलर, सो हाउ विल न्यूमरोलॉजी हेल्प हर। और कविता इज अ वाज अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, तो ऑलरेडी उनके पास 2 ऑकल्ट के वर्टिकल्स थे, तो हाउ विल न्यूमरोलॉजी हेल्प हर। और पायल वाज अ होम मेकर, तो हाउ कुड न्यूमरोलॉजी हेल्प हर। Myself was a CMA, a cost management accountant with a certificate of practice and a remunerating signature. So, how did numerology help me to transform into this profession? So, numerology is a science which can help each and every individual under the sun. न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो हर इंसान को हेल्प करता है, प्रोवाइडेड आप उसको अपने तरीके से आप उसको यूज करो। लेकिन कैसे यूज कर सकते हो आप? तो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट और अ न्यूमरोलॉजिस्ट और अ ट्रेनर। बिकॉज क्या होता है ना,
जैसे अगर गूगल से देख के कोई डॉक्टर बन जाता है तो फिर डॉक्टर्स की के लिए इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स नहीं होते। उसी तरह से अगर गूगल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके अगर आप निम्रोलॉजिस्ट बन सकते हो तो फिर निम्रोलॉजिस्ट की ट्रेनर्स की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने कहा, स्किल बेस्ड प्रोफेशंस दे ऑलवेज एट अ हाई एंड दे ऑलवेज विल बी। कितना भी एआई आ जाए हम लोग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली यस, अगर आप लोग प्रॉपर मेंटोर से सीखते हो, अगर आप लोग करते हो तो डेफिनेटली यस, दिस साइंस प्रोमिसेस यू अ लॉट। एंड फिर अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना उसे रिसर्च कर रहे हो, कितना आप उसको सीरियसली ले रहे हो, है ना। सो कविता हैज ऑलरेडी एनरोल्ड, कविता एंड पायल हैज ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर द क्लास। So in case Kiran or Ritu or anyone else who would be interested, so please let me know. So we will be having our second class from Wednesday, same time, 3:30 p.m. So we'll be having 2 to 3 classes a week, and it is a course of 25 classes. And जैसा कि मैंने कहा, 80% would be online and 20% would be offline. The mutual convenience at my chamber in Balikan Circular Road. Cost would be rupees 25,000 only, and we would start from, जैसे मैंने basic से शुरू किया, from basic to the professional level. So you become a professional analyst, professional neurologist, and you are able to learn. Not only you are learning, but you are also earning and healing via numerology. Yes. So anyone having any other questions regarding the session? मेल का जो पुआ नंबर होगा वो 11 में से माइनस होगा, राइट? Yes. ठीक है। तो उसमें पहले जो ईयर ऑफ बर्थ है, पहले हम उसको ब्रेक डाउन करके सिंगल नंबर पे लेके आएंगे, उसके बाद हम उसको 11 से माइनस करेंगे, क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फीमेल में भी ऐसे करेंगे, सिंगल नंबर पे ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद हम उसको 4 प्लस करेंगे। किरण, आपको समझ में आया जो हमने आपको बताया, लोशुगढ़ भरने का बताया, आपको समझ में आया? आपका कौन कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है? मेरा नीचे वाला लास्ट लाइन कंप्लीट हुआ है, तो उसमें तो लास्ट लाइन में 2 बार 8 आया है और 4 बार 1 है और 1 बार 6 है। अच्छी बात है। तो लेकिन आपने अभी ऐसे कोई आपने कुछ कहा बोल था देगा। कि मेरा लास्ट लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं सोची मेरे कुछ गड़बड़ होगा तो आपसे पीछे पूछूंगी। क्या चीज? लास्ट वाला लाइन में 2 बार 8 है, 4 बार 1 है और 1 बार 6 है। हम्म तो ये क्या सही है कि गलत है? एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया, आपका सही है। 4 बार 1 आएगा, 2 बार 8 है, क्योंकि आपका डेस्टिनी से 1 बार 8 आ रहा है, 1 बार आपके चार्ट से 8 आ रहा है। तो 2 हाँ बार 8 हाँ आएगा, 4 बार 1 आएगा। एक कुआं नंबर से 1, एक सेंचुरी नंबर से 1 है उसमें, और 1 बार 6 हाँ आपके ईयर ऑफ बर्थ से आ रहा है। 8 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स 1, हाँ 6 आ रहा है। हाँ हाँ। तो भी आप जब बता रहे थे तब आपने कहा था कि किरण का ये उसका भी नीचे वाला कंप्लीट नहीं है, टॉप लाइन तो पे मैं आपका सोची कुछ डबल लाइन और 2 आ रहा है। टॉप लाइन पे डबल लाइन और 2 आ रहा है। मिडिल लाइन में आपके कुछ नहीं आ रहा है, 3 5 7 में से कुछ नहीं नहीं आ रहा है। लास्ट लाइन नहीं 8, 4 बार 1 और 6 आ रहा है। यस, मैंने आपकी चार्ट को बना लिया था। बना लिया क्या? ठीक है, मैं सोची मैं कहीं गड़बड़ हो गया, नहीं, पीछे गड़बड़ पूछ नहीं हुआ है, लिया आपसे। गड़बड़ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, पूछना है हाँ जी। कि ठीक है। डेस्टिनी, जैसे हम लोग वैदिक से तो रखते नहीं है ना डेस्टिनी नंबर, अगर 1 1 आ जाए इसमें, जैसे कि 4 तो नंबर वैसे ही है, नंबर बर्थ डेट से आ जा रहे हैं, और डेस्टिनी और बेसिक से भी 1 1 आ जा रहे हैं, तो मतलब मेरा ये 6 चला जाएगा 1। नहीं, अब इसमें क्या होता है, इसमें एज वी लर्न फर्दर, सिंस आज का तो एक मतलब फर्स्ट क्लास था। हाँ, और इट वाज आल्सो अ डेमो क्लास, सो वी कांट शेयर एवरीथिंग इन द डेमो क्लास। तो हाँ इसमें ठीक क्या होता है कि द नंबर आल्सो कैरीज परसेंटेज एनर्जी फ्रम वेयर दे आर कमिंग। हाँ डेस्टिनी ओके। से आ रहा मोस्ट पावरफुल होगा, कुआं से आ रहा है, फिर हाँ उसके वो तो हम बाद फर्दर जाएगा। सीखेंगे ही, हाँ हाँ, यस। यस यस ओके, यस बट रखना सबको ही है, मतलब उठा के सबको ही रखना है, यस लाइक दैट। यस। वैदिक में हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा। हाँ, वैदिक इज स्लाइटली मोर डिफरेंट देन लोशु। सबका अलग अलग मोडल, मतलब थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाता है उसमें। किरण, आप कौन से ग्रुप से हो? मैं सोशल प्रोसेस से हूँ, मैं आपने आज डाला था ना।
कि हाँ, ये तो मैंने बहुत जगह मेरे डाला था। आपने कौन से ग्रुप में आपसे आप आए हो? अच्छा सोशल बेसिस में जो कई ग्रुप है क्या पता नहीं, सोशल अच्छा, बेसिस से ही तो मैंने लिया किरण है। खंडेलिया, किरण खंडेलिया क्या? किरण खंडेलिया, हाँ। अच्छा अच्छा। और रितु, यू आर फ्रॉम गोल्ड माइंस, राइट? Yeah, Rashmi, I am from Gold Mines. थैंक यू सो मच। Thank you. Nice talking to you. आज सेम हेयर। फ्री थी तो मैंने सोचा मैं ज्वाइन करूँ, क्या है देखूं, काफी सुनती हूँ इसके बारे में, इसीलिए मैंने आज इसको ज्वाइन किया। हाँ हाँ, ये ठीक बात है है। ना, बिल्कुल मोस्ट इसकी वेलकम। टोटल क्लासेस कितनी होती है, तो सीखते चाहे तो न्यूमरोलॉजी को? 25। 25। और सारी ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के होती है? ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के होगा। 80% ऑनलाइन होगा और 20% ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा। तो इसमें ऐसा भी होगा किसी दिन हम लोग ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, अगर हम ज्वाइन नहीं कर पाए तो क्या रिप्लेस हो सकती है और कोई दिन में? क्योंकि मैं बिजनेस अगर नहीं वूमेन आएंगे हूँ। तो आप, अगर जब नहीं आएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी। अच्छा, रिकॉर्डिंग से उस चीज को सीखना होगा। अच्छा अच्छा। कि आपके अलावा तो और स्टूडेंट्स भी रहेंगे ना, क्योंकि ऑफलाइन में हाँ थोड़ा हाँ अलग हो जाता है। ऑफलाइन में आपको सामने सामने बोर्ड पे एनालाइज करके दिखाते हैं, तो हाँ ऑफलाइन हाँ हाँ डिफरेंट। तो कोई भी कारण से अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो दिक्कत नहीं है, आप उस हाँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा, ये आपका बाई चांस अगर ऑफलाइन में हम नहीं जा पा रहे हैं इनकेस, तो आपको कोई नेक्स्ट बैच में अगर हम ऑफलाइन जा पाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, आप क्लास में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, वो तो किसी का इंडिविजुअल क्लास नहीं है ना। वो क्लास तो क्लास हो हाँ। जाएगा, वो किसी के लिए क्लास नहीं रुकता है। अच्छा, नहीं हाँ, तो क्लास क्लास किसी तो के लिए आपका नहीं तो रुकता है। कंटिन्यू, आपकी क्लास तो कंटिन्यू रहेगी। मैं उस दिन नहीं आ पाई और ऑफलाइन ही आना चाहती हूँ, तो वो मैनेजेबल है क्या कि फर्दर कोई दूसरा बैच में अगर आप वो क्लास ले रहे हो तो मैं उसको ज्वाइन कर पाऊँ? नहीं नहीं ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? क्योंकि हर बैच का लेवल अलग अलग रहता है। आप लोग को मैंने कब क्या पढ़ाया, किसी बैच में कब क्या पढ़ाया है, तो वो हर बैच में अलग अलग रहता है उसका। राइट राइट राइट, आपका हाँ। बैच में ही आप आ सकते हो, या फिर अच्छा अच्छा। किसी कोई क्लास ले रही हूँ तो मैं तो अगोरा स्पेस में बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ। आप लोग आइए, मैं तो कई बार ही बोलती हूँ, फ्री क्लासेस ही होता है। पेमेंट भी कुछ नहीं करना होता है। आप लोग बिल्कुल आराम से आके बेनिफिटेड हो सकते हो वहां पे। वो तो ठीक है, वो थोड़ा सा वहाँ पे सीढ़ी का इशू है ना, इसीलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। बहुत बार मेरे को बोलती है रीनू दी आइए आइए, वो सीढ़ी की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, ठीक है, मैं सोच लेती हूँ। नहीं। इसका श्योर। चार्जेस क्या बताया था, एक बार आप रिपीट करेंगे? चार्जेस 25,000 ओनली। 25,000। ओके, ठीक है, जरूर। आज पहली क्लास किया, अच्छा लग रहा है, फिर थैंक यू। बात करते हैं। हाँ, श्योर श्योर, थैंक यू। अगर आपको क्लास में जुड़ना है तो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को, यानी कि परसों है, 3:30 बजे अच्छा से रहेगा। तो अगर आपको जुड़ना अच्छा है तो आपको कल तक फाइनली बताना रहेगा। और जैसे मैं इसमें आप लोग को 3 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देती हूँ, तो आपको एक अच्छा इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी करना रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम तो उस हिसाब से जुड़ेंगे तो विथ पेमेंट ही जुड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ। नहीं, मैंने एक तो अच्छा। क्लैरिटी दे दी आपको, ऑब्वियसली। एक तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो कंफ्यूजन तीन रहेगा। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या रहेगा ऑप्शन, 3 इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट्स में कैसे कैसे रुपया देना रहेगा? 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। अच्छा, 10 10 5 रहेगा, ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे, आत्मा नमस्ते एवरीवन राधे राधे। फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे। So we'll do a small closing invocation as we finish off. राधे राधे। Radhe Radhe. Thank you so much, Divine Father, Divine Mother, all the holy gurus, all the devas, all the Kul Devis and Kul Devtas, all the Ishta Devis and Ishta Devtas, all the holy angels, angels of technology, numerology, all the occult sciences, our guardian angels, angels present in this room and in the room of respective participants. We all thank you for your priceless blessings, help, healing, and protection, and for the smooth running of the session. We all thank you in full faith. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much थैंक everyone यू। for थैंक यू। being again on Wednesday. Radhe Radhe. थैंक यू। राधे राधे।